we have seen logarithmic amplifier, an amplifier in which the output is proportional to the logarithm of input voltage. In this journey, we have seen when the diode is kept in a feedback instead of feedback resistor, we see that this circuit acts as a logarithmic amplifier. It is because of the diode characteristic, whose current rises exponentially with respect to its forward voltage. So we see this equation for that forward current, Is e raised to power Vf upon eta Vt minus 1. And then when we equate the by means of a Kirchhoff's law, I1 equals to If, we come to a relation whereby we are getting output voltage is equal to minus eta Vt into natural log of V in upon R1 minus natural log of reverse saturation. So here we see two terms which are temperature sensitive, means which we are not allowing us to fully say that the output voltage is proportional to the logarithmic of input voltage. So we need to get rid of these two terms, two temperature sensitive terms. One is a Vt and another is a LNIS. For that, we have modified this circuit and we have used a matched diode here in a reverse and a current supplying or constant current supplying current source, and one amplifier in which one of the resistor is a resistive transistor, which makes us possible just by deriving this one that the output voltage is only proportional to the input voltage by maintaining the thermistor resistor in order to suppress the, you can say, the scaling factor. Similarly, by adding one more stage of diode, we are able to get rid of the offset term. So in total, we are getting the output voltage equals to K1 times natural log of K2 times V. So K1 and K2 are constant, so we can say effectively output voltage is proportional to the logarithmic of input voltage. We have seen its limitation. So after this, we have seen the anti-log also. In anti-log, either you can keep that you should keep a diode at the input side. This also will act as a anti-log amplifier, or we need to study the modified one, and that we have studied here, anti-log amplifier using diode. So here we have derived the output voltage which is proportional to the anti-log of input voltage Vs. So that we have studied. Now some of the log and anti-log amplifier using transistors I have given as a notes. So here the collector current behaves as if the diode current with respect to base emitter voltage. So that is very similar. You can see same equation. We are getting emitter current is equal to Is e raised to power Vb. Here the forward voltage is base to emitter voltage upon Kt. So the same analogy applies here, and thereby we are getting output voltage proportional to the logarithmic of input voltage. Same way, anti-log, we are instead of diode we are using transistors. So this you can see. Now we'll see the applications of this logarithmic amplifier. So we'll see a new chapter of log anti-log amplifier. We know as such the logarithmic amplifier, what do we get? Why do we apply the log anytime? That thing should come into your mind. Why we apply the log of any function? We are applying the logarithmic. Why do we apply? What is your interpretation? Why do we apply the logarithmic? सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि लॉग लगाने से कोई भी जिसको हम लॉग लगाते हैं वो चीज छोटी हो जाती है. ये ध्यान में आता है कि आप लोगों के, इफ यू आर अप्लाइंग ए लॉग टू द 1 मेगाहर्ट्ज और 10 टू पावर 6, इट बिकम्स ओनली 6. जो पावर में है वो सामने आ जाता है. लॉग ऑफ 10 इज 1. सिमिलरली लॉग ऑफ 10 5. इट जस्ट shrinks. It is just a compressing. It is just making that number a very small. Can you appreciate that one? Are you able to understand this? कि कोई भी बड़ी संख्या को अगर हम लॉगरिथमिक निकालते हैं तो छोटी हो जाती है. इसलिए हम लोग जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करना है तो लॉग सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज करते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हमारी राइट फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज अप्लाई करना है. तो वो प्लेन ग्राफ पेपर में हम लोग उतने दूर तक नहीं जा सकते. सो इन ऑर्डर टू श्रिंक दैट वी यूज अ logarithmic amplifier. Are you getting it? Yes, sir. Then there is one more thing. Logarithmics makes our mathematical functions easier. If you see there is a product, from childhood we know the multiplication is difficult than the addition. So if there is a multiplication and if you are applying the logarithmic, that multiplication will become the addition. Log of a into b is equal to log of a plus log of b. And once you add it, you can take an anti-log. So simply you will get the product. That is one more intention. Okay. So let us see the application of this one.
So in this, the first is logarithmic multiplier. Now we will use here a block diagram for that one. Let's say simply if I want to use this as a, let's say this is log amplifier, which we have studied as a of diode, and this is its input, and we are applying it through certain register. Let's say I am taking another log amplifier and to which a other registers we have connected, and this I am giving to an op amp which is connected in a inverting mode. Let's say this is some voltage with respect to ground V1. Let's say this is certain voltage V2 with respect to ground, okay, V1 and V2. Let's say it is giving the output voltage is some, as it is a negative, it gives negative some constant K1 and natural log of V1. This is some constant K1 natural log of V. And this is simply a inverting adder, you can say. ये क्या सर्किट है, ये आगे जो लगा हुआ है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ये समिंग एम्पलीफायर है. अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है ये समिंग एम्पलीफायर है, तो ये ऐड करेगा, ये हमको मालूम है. तो अगर मैं ये दो लॉगरिथमिक, एक V1 का लॉग ले लूं और एक V2 का लॉग ले लूं, तो यहाँ एडिशन होके क्या मिलेगा. सपोज मैं इसको नाम दे दिया, यहाँ V1 V2 है तो इसको V3 नाम दे दिया. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. व्हाट आई शुड गेट log of each input. Then the next process is sum of these inputs, and then what do we need to do. अगर यहाँ पे हम लोग V3 निकालेंगे, V3 तो क्या आएगा, ये सिंपली एडिशन आएगा. ये इन्वर्टिंग में होने से ये निगेटिव एडिशन ऑफ माइनस K1 नेचुरल लॉग ऑफ V1 प्लस, दोनों माइनस है, माइनस K2 नेचुरल लॉग ऑफ V2. ठीक है, ये सभी इक्वल रजिस्टर है, माइनस RF अपन R इक्वल टू 1. तो ये हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, K1 ये अपन ने कॉमन निकाल दिए, नेचुरल लॉग ऑफ V1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ V2 विच इज नथिंग बट, अगर दोनों का एडिशन है लॉग का तो इसका मीनिंग क्या होता है, V1 V2. आर यू गेटिंग इट. हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिल गया, मल्टीप्लायर. लेकिन ये प्रोडक्ट का यहाँ लॉगरिथमिक है, इसको कैसे निकालना, तो यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग लगा देंगे. तो यहाँ पे और एक स्टेज लगाना पड़ेगा जिसको नाम दे दो एंटी लॉग एम्पलीफायर. ये हमको आउटपुट देगा. सो फर्स्ट विल टेक अ लॉग ऑफ ईच इनपुट, देन वी आर समिंग इट, देन वी आर टेकिंग द एंटी लॉग ऑफ दैट, एंटी लॉग ऑफ सम. तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स. ये हमारी प्रोसेस है. सो this is what we are trying to perform and we are getting VO. यहाँ VO क्या मिलेगा, it will be some, you can say anti log of K1 natural log of V1 V2 with certain constant, let's say K2. तो ओवरऑल मिला के हम लोग बोलेंगे कि सम K डैश नाम दे दो, K2 V1 into V2. एंटी लॉग ऑफ लॉग अपने आप प्रोडक्ट हो जाएगा. तो हमको आउटपुट वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज. आर यू गेटिंग इट. हमने क्या किया, सिंपल प्रॉपर्टी यूज किया है कि A और B इनपुट है, इसका ln A और ln B किया, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमको मिल गया ln AB. इसको यहाँ पे हमने एंटी लॉग किया तो यहाँ पे मिल गया AB. बस इतना हमने किया तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉगरिथमिक मल्टीप्लायर. इट इज इजी. Just you are taking the log of individual input voltage, then you are adding that, so ultimately you are getting the log of product, and then when you take anti-log of that, you get simply product. So I suppose this is easy to understand. Yes, sir. Now how do we take a division? जैसे अभी आपने मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे डिवीजन कैसे कर सकते हैं. अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया ना, दो V1 और V2 का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया ना, तो डिवीजन कैसे कर सकते. Minus. बस बराबर है, सब्ट्रैक्शन. सो इन डिवीजन we have two things. Either, दो मेथड है इसके, either subtracting the logarithmics of two inputs and taking its anti-log. ठीक है, this is one of the way. और एक है log ratio. This can most easily be done with the log ratio circuit. Now we'll see one by one both the things. Okay, how we can do a division. तो अब हमको अगर ये करना है तो मैंने ये लॉग एम्पलीफायर का डायग्राम बनाया. क्या रहता है लॉग एम्पलीफायर में, यहाँ एक रजिस्टर रहता है, यहाँ डायोड, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है मुझे अगर, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दे देना पड़ेगा. और एक ऑप एम्प ले लो, थ्रू रजिस्टर, एक और डायोड, इसको इनपुट दे दिया सपोज V1, इसको दे दिया V2, ये एक डायोड V1, ये D2,
लेट्स से A1 A2 यहाँ पे प्लस VCC माइनस VE एंड इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दे दिया या सबट्रैक्टर को दे दिया। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसा रहता है, बस सिंपली ये लगा दिया निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी 2 रजिस्टर दिखा देना है, एक रजिस्टर यहाँ और दूसरा रजिस्टर यहाँ ग्राउंड। तो ये सबट्रैक्टर करके काम आएगा। लेट अस से दिस इज V3। ये इन सबको रजिस्टर हम लोग इक्वल ले सकते हैं ताकि सबट्रैक्शन हो जाए, या ये 2 रजिस्टर सेम होना चाहिए और ये 2 रजिस्टर सेम होना है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सबट्रैक्टर करके काम करता है। और जब ये दोनों का लॉग का डिफरेंस आएगा तो इसको वापस से एंटी लॉग दिखा देना है, एंटी-लॉग एम्पलीफायर। सो इट विल गिव मी द आउटपुट वोल्टेज V। हाउ, लेट अस सी। V3 क्या मिलेगा हमको, V3 विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू सिग्नल। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इट विल बी सम प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से K1 नेचुरल लॉग ऑफ V1, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू K1 नेचुरल लॉग ऑफ V2। सो V3 विल बी difference of these two, so I must get K1 natural log of V1 by V2, या और डिटेल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं K1 ln V1 minus K1 ln V2, so V1 by V2, so our output voltage will be some constant K2 anti-log, और ऐसे भी लिखते हैं V3 upon certain constant K1। तो हमको अल्टीमेटली आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा K2 V1 by V2। ये नेचुरल लॉग जो था यहाँ पे उसका एंटी लॉग ले लिया है, ठीक है। ये V3 यानी क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन है। चाहे तो आप यहाँ स्टेप बढ़ा सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ, या इसको ऐसे लिखो या एंटी लॉग लिखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ एंटी लॉग ऑफ V3 क्या है, K1 नेचुरल लॉग ऑफ V1 बाई V2 बाय K1 था, वो दोनों ये हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग का एंटी लॉग निकालेंगे तो अपने आप V1 बाई V2 आ जाएगा। सो यू आर गेटिंग दिस एंड यू कैन क्लेम दैट आउटपुट वोल्टेज इज proportional to division, okay? So it has certain good thing and some, ये the log technique of multiplication and division is of course useful। इसका मतलब बताओ जो मैं लिखा हूँ, यूजफुल ओनली फॉर यूनिपोलर इनपुट्स। इसका मीनिंग क्या है, यूनिपोलर इनपुट्स, व्हाट डज इट मीन, और वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, द लॉग टेक्निक जो है ये यूजफुल है ओनली फॉर यूनिपोलर, क्योंकि आप देखना लॉग ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी ही आप निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ निगेटिव क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, इसलिए यूनिपोलर चाहिए। और वन क्वाड्रेंट एक्चुअली अपन ये बोलते हैं ना, इसको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई भी, मतलब वोल्टेज भी और करंट भी। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, इसमें दोनों निगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और ये निगेटिव है। सो ये सिंपली ये वाले क्वाड्रेंट में ही हम काम कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज भी पॉजिटिव होना और करंट भी पॉजिटिव हो। ओके, सो इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक। द लॉग अप्रोच unfortunately suffers from strong temperature sensitivity। हमको मालूम है, ये पहले भी देख चुके हैं हम, strong temperature sensitivity, this is one of the drawback। Similarly input should not be zero or negative, that is natural log of zero is infinite। ये सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा, इसलिए वो जीरो नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज रहना चाहिए। तो ये इसका ड्रॉबैक है। सो आई होप यू नो इट और you do understand it, okay? अब लास्ट रह गया है लॉग रेशियो एम्पलीफायर, दैट विल सी एंड द लॉग एम्पलीफायर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। तो सिंपल है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको डिवीजन मिल जाएगा। इस तरीके से ऐसी चीजें कहाँ यूज करते होंगे, कोई आइडिया है क्या आपको? मैं एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। आजकल डिजिटल सब मीटर बन रहे हैं ना, याद आ रहा है आपका? एनर्जी मीटर क्या होता है आपको मालूम है क्या? एनर्जी मीटर आपके घर में रहता है, एनर्जी मीटर किसको मालूम है? एनर्जी मीटर। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे चार्ज करते हैं? यूनिट मीटर ना सर, उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं एक्चुअल में। आपने एमीटर सुना है? यस सर। वोल्ट मीटर सुना है? यस सर। पावर मीटर सुना है? पावर से क्या मेजर करते हैं? वैटेज, नेट पावर डिसिपेशन, बराबर है। वोल्ट मीटर से वोल्ट, एमीटर से करंट। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? आप घर में क्या कंज्यूम करते हैं? पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन पावर कंज्यूम करने पर आपको चार्जेस कैसे लगाते हैं? पावर तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं? एक लाइट 60 वैट का, 100 वैट का, फ्रिज का कुछ और वैटेज, इन सब का एडिशन, मतलब पावर कंज्यूम पे है उनका ध्यान, पर कितने टाइम के लिए कर रहा है वो भी तो डिसाइड हो रहा है ना।
है कि नहीं है? कितने टाइम के लिए कर रहे हैं वो भी डिसाइड हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन पावर एज वेल एज फॉर हाउ मच टाइम यू आर यूटिलाइजिंग इट. सो एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम. ओके, और इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर. एक 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट आप जो बोलते हैं. सो एनर्जी मीटर जो यूनिट देता है वो बता रहा है आपको कि हाउ मच वैटेज you have utilized in an hour in a time. So that is energy meter. तो एनर्जी पावर क्या होता है या एनर्जी क्या होता है? ये V इंटू आई होता है. ऐसे वक्त में हमको जो भी ये सर्किट है इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया है इसमें से कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए. तो डिजिटल एनर्जी मीटर में वोल्टेज निकाला जाता है और ये करंट निकाला जाता है और इनका प्रोडक्ट किया जाता है. तो जब ऐसे प्रोडक्ट करना है तब लॉगरिथमिक एम्पलीफायर से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एनालॉग क्वांटिटी है. इसके लॉग से अगर हम एडिशन कर दे और उसका एंटी लॉग करें तो ऐसे एक्चुअली अपने आप में सर्किट बने होते हैं, मतलब आईसी बनी होती है, इसलिए आपको वरी नहीं करना पड़ता है. लेकिन वहां पे ये एडर और सब्ट्रैक्टर से मल्टीप्लीकेशन जो है वो यूज करते आता है. तो V इंटू आई आपका पावर हो जाता है और पावर इंटू टाइम, कितने देर के लिए वो पावर कंज्यूम किया, वो आपका एनर्जी हो गया. सो होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस सी द लॉग रेशियो एम्पलीफायर. रेशियो बोला मतलब क्या हो सकता है? रेशियो बोला तो इसमें भी कुछ नहीं, ये जो इन दोनों को सब्ट्रैक्टर को ही दे दिया है. ठीक है, ये आपका लॉग, यहाँ डायोड अगर दिखा दिया तो ये लॉग एम्पलीफायर हो गया जिसका टर्मिनल ग्राउंडेड है, नॉन इन्वर्टिंग. सेम वे वी आर यूजिंग इट. अनदर डायोड सर्किट इज गिवन बाय द पावर, और ये जो है ये ग्राउंड है. लेट अस से आई एम अप्लाइंग हियर ए V1, here I am applying V2, and this thing is given to one subtractor, you can say one subtractor. तो subtractor using op amp यानी differential amplifier का ही ये derived version है, या आप बोल सकते हैं कि उसी का रूप है ये. So let's say if this is V1 V2, this is V3 V4, both register, this register should be equal and ये रजिस्टर इसके साथ में सेम रहना चाहिए. तो ये दिस विल एक्ट एज अ सब्ट्रैक्टर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो इसमें से मुझे बताओ, अगर इसको मैंने ले लिया है तो मुझे यहाँ पे V3 कितना मिलेगा? V3 विल बी माइनस ईटा VT. अब मैं उस पूरे इसमें लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, ताकि कांस्टेंट K1 K2 नहीं देखना है तो इसमें अपने आप प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. V1 अपॉन R1 माइनस ln IS, ये हम देख चुके थे पहले भी. सेम विल गेट फॉर V4 माइनस ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V2 अपॉन R1, ये दोनों सेम रजिस्टर ले लिए हैं, R1 इंटू ln IS. अब ये दोनों कहाँ लगा हुआ है? ये V3 यहाँ लगा है, ये V4 यहाँ लगा है, और ये सब्ट्रैक्टर है. सो अल्टीमेटली आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? माइनस RF अपॉन R, यहाँ का कौन सा है? R2 इंटू V3 माइनस V4. अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करते तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? इफ आई टेक दिस वन, आई कैन से दिस इज इक्वल टू RF अपॉन R2 V4 माइनस V3, क्योंकि ये इधर भी माइनस है, ये यहाँ पे लगा दिया. सो आउटपुट वोल्टेज आई एम गेटिंग RF अपॉन R2 इंटू VT, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अल्टीमेटली लॉग ऑफ V4 बाय लॉग ऑफ V4 माइनस लॉग ऑफ V3. एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारा? ये दोनों का यह जो टर्म आ रहा है V1 अपॉन R1 और V1, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होने से V1 अपॉन R1 अपॉन V2 अपॉन R1, तो R1 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा सिंपल V1 अपॉन V2. ये समझ में आया कि नहीं है? जस्ट ये वैल्यूज रखना है, कुछ नहीं, ये वैल्यूज रखना है आपको. एक ये एक रखो और ये दो, यहाँ पे वैल्यूज रखो तो आपको ये मिल जाएगा. यू विल गेट दिस रिलेशन. सो लॉग रेशियो इसको इसलिए बोला है, इट इज द रेशियो ऑफ V1 V2, लॉग ऑफ रेशियो. ओके, सो द रिक्वायरमेंट इज हियर D1 D2 शुड बी मैच्ड और मैच, एंड हेंस वो IS टर्म अपने आप कैंसिल हो जाता है. हेंस टेम्परेचर सेंसिटिव टर्म कौन सा? ईटा VT IS, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, कैंसल ईच अदर. तो हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रेशियो के कारण. इन अबाउ इक्वेशन गेन टर्म, अब यहाँ पे एक और टेम्परेचर सेंसिटिव टर्म आ रहा है ना, ईटा VT, तो वो पहले जैसे ही अपन कर सकते हैं. गेन टर्म कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर VO इफ RF by R2, ये जो स्केलिंग टर्म है RF by R2,
is made to have a compensating temperature. जैसे पहले यूज किया था ना अपन ने थर्मिस्टर, in the same way temperature compensating temperature sensitivity. So with this we can get a output voltage proportional to logarithmic of ratio V1 by V2. So in this way the topic completes our of related to log and anti-log amplifier. We have seen its application. We have seen the log amplifier, anti-log amplifier, ID product and division, how to get it. So a very small topic is there. I'll just start that one, the sample and hold circuit.